Dear students, class 10 science. Today we will discuss on the solutions of in-text questions and exercise for the chapter 3 metals and non-metals. First of all, in-text questions, page number 40. Question 1. Give one example of metal which is number 1 liquid at room temperature, that is mercury. जानते हैं. Can be easily cut with knife, that may be the sodium. Which is best conductor of heat, that is silver, but it is very expensive. And a metal which is poor conductor of heat, that is lead. So these are the questions we have to learn. Question number 2. Explain the meaning of malleable and ductile. Malleable, a metal is called malleable if it can be beaten into thin sheets. इसकी sheets बनाई जा सके is malleable. Ductile, a metal which can be drawn into wires. जिनके wires बनाए जा सकें, wires draw किए जा सकें, these are ductile. Now in text question page number 48, question number 1. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? And that is because sodium is very highly active. So to protect it from reaction with air, carbon dioxide, moisture, we keep it in kerosene oil. Question number 2. Write equations for the reactions of iron with steam and calcium and potassium with water. So these are the reactions. Iron reacts with water, steam, and forms Fe3O4 plus 4H2. Second, calcium with H2O gives hydrogen gas and calcium hydroxide. Potassium with water gives potassium hydroxide and H2O and heat. Question number 3. There are 4 samples of metal ABCD, and having the information from the table, we have to find out the questions and their answers. Number 1, which is the most reactive metal? First of all, we have to find out which is most reactive. So in the table A, that is only giving displacement with copper sulfate and no reaction with iron sulfate, zinc sulfate, silver nitrate. It means this metal is more reactive than copper only. B, it displaces iron sulfate and iron from iron sulfate. So it means it is more reactive than iron. And with zinc sulfate, it is giving no reaction. So it is more reactive than iron, but zinc is having no reaction. C is giving only displacement with silver nitrate. It means it is more reactive than silver nitrate. और silver nitrate से ही silver के comparison में ज़्यादा active है. D has no reaction. It means D is least. And B, which is giving displacement with iron sulfate, it is most. So most reactive is B element, and most unreactive is D. So 2 answers हमने मिल गए हैं. Now what would we observe if B is added to copper sulfate solution? Because B is most reactive, so it can displace copper from copper sulfate. So solution of copper sulfate, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसका कलर फेड हो जाएगा and a light color or the color of the solution will change from blue to colorless. And now arrange the following. So we have find out that B is most reactive, D is least reactive, and A is giving reaction, but C is giving reaction with one only silver nitrate. So order is B सबसे ज़्यादा होगा, A उससे कम होगा, D सबसे कम है और D से ज़्यादा C है. So that is the order. B greater than A greater than C greater than D. Now question number 4. Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal? First of all, we must know metals react with hydrochloric acid to give hydrogen gas. Write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid. Sulfuric acid is also acid and it will also produce hydrogen gas. So reaction will be Fe plus H2SO4 gives FeSO4 plus H2. So which gas is produced? That is hydrogen gas. Now question number 5.
What would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? Write the chemical reactions. So we know that zinc is more reactive than iron. So when zinc is added to solution of iron sulfate, then greenish color of iron sulfate will fade, and it is due to formation of colorless zinc sulfate solution, and iron metal is deposited on zinc. बिकॉज जिंक आयरन सल्फेट में से आयरन पर से ज्यादा एक्टिव है, एक्टिविटी सीरीज में इसकी जन आयरन से ऊपर है, सो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर देगा उसके सोल्यूशन से, एंड देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 1. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. First, we must know what is electron dot structure. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखा जाता है किसी भी मेटल के या नॉन मेटल के जो भी एलिमेंट है उसके सिंबल के साथ में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट्स के फॉर्म में दिया जाता है. तो सोडियम के केस में इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2, 8, 1. फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1. So outermost orbit में 1 electron है, so symbol will be Na with 1 electron as dot. In case of oxygen, it is having atomic number, it is having 6 electron in the last orbit, so 6 electron will be represented by the dots. In case of magnesium, magnesium is having 12 atomic number and in the last orbit is having only 2 electrons. So it is having 2 dots with the Mg. So we will write in the same way. Formation of Na2O and MgO. In case of sodium oxide Na2O, sodium has only 1 electron in the outermost orbit. जैसे कि देख रहे हैं 2, 8, 1. तो सोडियम के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से इसको इजीली डोनेट कर सकता है. बट ऑक्सीजन रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे. इन दिस केस 2 सोडियम एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट विल हैव -2 चार्ज. सो अरेंजमेंट इज Na plus 2 times and oxygen 2 electron it has received and -2 charge on oxygen. And in Na2O, question number 3. In Na2O, ion presents are sodium +1 and O -2. Question था कि what are ions present in these compounds? So sodium oxide में है, सोडियम के आयंस +1 की फॉर्म में होंगे और ऑक्सीजन होंगे O -2 की फॉर्म में. इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, सो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में आयंस होंगे Mg+2 एंड O -2. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स? हम जानते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको तोड़ने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, काफी हीट चाहिए. सो दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स? इनके अंदर कंपाउंड क्या होंगे? व्हाट आर आयंस प्रेजेंट? मेनली इनके अंदर कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 53. we'll discuss on these questions. Question number 1. Define the terms. These are the terms: mineral, ore and gangue. Minerals, the natural material in which metal or their compounds are found in earth, are known as minerals. जमीन के अंदर से, अर्थ के अंदर से जिस भी फॉर्म में मेटल के कंपाउंड्स, मेटल के से रिलेटेड मटेरियल निकाले जाते हैं, माइनिंग की जाती है, वो सब मिनरल्स हैं. और ये वो मिनरल्स हैं, दीज आर दोज मिनरल्स जिनसे कि हम इजीली और कम खर्च पे इकोनॉमिकली मेटल को निकाल सके.
Gangue particles, these are the impurities associated with the compounds of metal which are taken out from the earth. जमीन से मेटल के जो भी कंपाउंड बाहर निकाले जाते हैं उनके साथ सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी मटेरियल, लाइमस्टोन, माइका वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, इन्हें हम इम्प्योरिटीज कहते हैं एंड नोन एज गैंग. सो वन थिंग इज देयर कि सभी ओर्स मिनरल होते हैं, but all the minerals are not ores. Question number 2. Name two metals which are found in nature in free state. These are only two, gold and platinum. जैसे हैं वैसे ही मिलते हैं, केवल ये रॉक एंड के साथ में दबे रहते हैं, उनके साथ जमा होते हैं. Question number 3. What chemical process is used for obtaining metal from its oxide? We can use the reduction process. We have to remove the oxygen from the metal oxide, so that method is reduction. तो reduction with coke हम mostly करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जो ऑक्सीजन को हटाने में काम आते हैं. इन केस ऑफ एग्जाम्पल Fe2O3 आयरन कंपाउंड्स के लिए वी कैन यूज आयरन एज द रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड आयरन हमें मिल जाएगा. तो वही केवल मेटल डिस्प्लेस करेंगे जो उन मेटल्स को जो लो रिएक्टिविटी होंगे सीरीज में सबसे नीचे होंगे या उस मेटल के कंपैरिजन में नीचे होंगे, उनसे कम रिएक्टिव होंगे. इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 1. मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स. इनके ऑक्साइड्स को हीट किया गया. तो हमें क्वेश्चन आते हैं, इसके बेस पर हमें क्या मालूम करना है. इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस. तो आपको एक्टिविटी सीरीज को यहाँ यूज करना है. उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पर यू कैन गिव द आंसर. मेटल जिंक ऑक्साइड है, तो हमें देखना है कि जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर में से कौन इसको डिस्प्लेस कर सकता है. तो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर भी नहीं करेगा, जिंक भी नहीं करेगा. मैग्नीशियम ऑक्साइड को, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को इनमें से कोई भी डिस्प्लेस नहीं करेगा. कॉपर ऑक्साइड सबसे कम एक्टिव है, तो जिंक और मैग्नीशियम दोनों ही कॉपर को उसके ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2. विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली. कोरोजन मतलब खराब होना, जंग लगना, रस्टिंग होना. सो गोल्ड एंड प्लेटिनम दो ऐसे मेटल हैं जिन पे कभी भी रस्टिंग नहीं होती है, जो कभी भी खराब नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर एलॉयज. एलॉयज जो है एक मिक्सचर है दो से ज्यादा मेटल्स का या फिर मेटल के साथ नॉन मेटल का. सो एग्जाम्पल हम जानते हैं कि ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन मिलाया जाता है, जबकि ब्रास में कॉपर के साथ जिंक मिलाया जाता है, और स्टील के साथ में ये एलॉय है आयरन के साथ कार्बन मिक्स किया जाता है, जिससे कि इनकी क्वालिटीज बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती हैं. Now solution for chapter and question means exercise questions. So number 1 is, it is objective type question. You have to select the first answer. सबसे पहली चीज आपको याद रखना पड़ेगा कौन रिएक्शन नहीं देता, ये सिलेक्ट करते जाइए, यानी कि लॉ ऑफ रिजेक्शन. अब हर क्वेश्चन में गलत आंसर को निकालते जाइए पहले, केवल आपके पास राइट आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल ये डिस्प्लेसमेंट देंगे या नहीं देंगे. नहीं देंगे क्योंकि कॉपर सोडियम से कम एक्टिव है. MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्यूमिनियम. अब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज्यादा एक्टिव है, सो नो रिएक्शन. FeSO4 एंड सिल्वर, आयरन सिल्वर से ज्यादा एक्टिव है, तो सिल्वर आयरन को नहीं रिप्लेस कर सकता. तो क्वेश्चन नंबर डी, आंसर नंबर डी, AgNO3 एंड कॉपर, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. एक्टिविटी सीरीज में कॉपर का जो प्लेस है वो सिल्वर से ऊपर है, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग. फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं. अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस हम लगा नहीं सकते. अप्लाइंग पेंट, खाना बनाना है उसमें, हमें कुकिंग करनी है, सो पेंट अप्लाई नहीं कर सकते. अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, यस इसको हम कर सकते हैं. ऑल द अबव इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी.
Question number 3. An element reacts with oxygen to give compound with high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be. एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बनाता है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। कैल्शियम का ऑक्साइड, जो कि कैल्शियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो केवल इसका ऑक्साइड ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होगा। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन कंपाउंड है नहीं। आयरन, ये इसका कंपाउंड जो है कार्बन का और सिलिकॉन का कंपाउंड ऑक्साइड बनाएंगे जो कि गैस की फॉर्म में होंगे। आयरन का ऑक्साइड आसानी से नहीं बनता है, तो इसलिए सबसे आंसर होगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 4. फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। खाना बनाने के लिए जो हम बर्तन यूज करते हैं, जो हम कंटेनर्स यूज करते हैं, कैंस यूज करते हैं, उनमें हम कोटिंग टिन की करते हैं, जिंक की नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, ये हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 आंसर देखिए क्या दे रखे हैं। जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ये कोई बात नहीं है। जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक टिन से लेस रिएक्टिव नहीं है। सो आंसर इज डी, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्योंकि जिंक रिएक्शन कर जाएगा अगर हम उसको यूज करेंगे, टिन रिएक्शन नहीं करेगा। खाना बनाते टाइम कुकिंग करते हुए कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5. यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर एंड ए स्विच। इनको यूज करते हुए यू हैव टू डिस्टिंग्विश सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। और दूसरी बात, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सो आंसर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर हम हैमरिंग का यूज करते हैं, हैमर्स का यूज करते हैं, तो मेटल कैन बी चेंज इनटू शीट्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। जबकि नॉन मेटल्स, ये रिएक्शन उनके अंदर नहीं होगी, दीज विल नॉट फॉर्म द शीट्स। दूसरी बात, व्हेन मेटल्स आर कनेक्टेड विद सर्किट, बैटरी, बल्ब, वायर सबको यूज करते हुए अगर हम इसको सर्किट बनाते हैं तो बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। बट नॉन मेटल्स के साथ में बल्ब ग्लो नहीं करता है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर है। बिकॉज ऑफ मैलेबिलिटी मेटल कैन बी कास्टेड इनटू शीट्स, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट। इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, so these can be detected from non-metals. Question number 6. What are the amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxide. We must know that. What are amphoteric? So those oxide which can act as acidic nature as well as basic nature. Means ये acid से भी reaction करेंगे, base से भी reaction करेंगे और salt बनाएंगे and water बनाएंगे। तो इनमें से सबसे best example हमारे सामने है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। रिएक्शंस आपके सामने हैं, आप कोई भी एक रिएक्शन में से लर्न कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू गिव ऑल द एग्जांपल, बट यू आर आस्क्ड 2 एग्जांपल्स, सो यू कैन गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, दोनों से रिएक्शन शो की गई है। इन द सेम वे जिंक ऑक्साइड HCl से भी रिएक्शन कर रहा है और NaOH से भी रिएक्शन करता है। तो इन दोनों को हम लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। क्या इसमें क्वेश्चन आंसर दिया होगा? आंसर होगा सोडियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। सोडियम मैग्नीशियम क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। कॉपर, सिल्वर डिस्प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्वेश्चन नंबर 8. इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल M, व्हाट यू टेक एज एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी हमारे पास एक मेटल है जो कि हमने एक्सट्रैक्ट किया है लेकिन ये इम्प्योर है, और हमें उसकी जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज उस पर एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, वी हैव टू रिमूव। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसी मेटल का सॉल्ट
सॉल्यूशन हम यूज करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। प्योर मेटल्स को हम कैथोड बनाएंगे, यानी कि बैटरी में नेगेटिव एंड से जोड़ेंगे। इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाएंगे, पॉजिटिव एंड से जोड़ेंगे, और इससे मेटल को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। हमेशा प्योर मेटल का कैथोड बनेगा, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाएंगे और उसके सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्युष took sulfur powder in a spatula. Spatula means just like spoon. तो केमिकल लेबोरेटरी में वहां पर इसको इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पैचुला, जो चम्मच टाइप का होता है, स्पून टाइप होता है। एंड उस मेटल को हमने उस पर रखा, सल्फर पाउडर को रखा, उसको हीट किया। उसने देखा कुछ गैस कलेक्ट हुई टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो सबसे पहले बताइएगा, पूछा क्वेश्चन गया है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस। वो एक्शन गैस कैसी होगी, किस पर रिएक्शन होगी, उसके ड्राई लिटमस पेपर पर। क्योंकि कोई भी गैस ड्राई कंडीशन में लिटमस पेपर पर कोई रिएक्शन नहीं करती है, केवल वो सोल्यूशन की फॉर्म में जब वो आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में या वाटर मॉइस्चर को ले लेगी, तब वो रिएक्शन देगी। सो नो रिएक्शन विद ड्राई लिटमस पेपर। मॉइस्ट लिटमस पेपर, क्योंकि सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बनेगा सल्फ्यूरस एसिड। सो इट इज एसिडिक इन नेचर। सो मॉइस्ट लिटमस पेपर जो है ब्लू से क्या होगा, रेड हो जाएगा। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होगी रिएक्शन, वो नीचे लिखा है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट गिव्स सल्फ्यूरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को रोकने के लिए कोई 2 मेथड बताइए। नंबर है पेंटिंग, पेंट करेंगे। नंबर 2 गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मीन्स वी कैन डिपॉजिट द लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। What type of oxides are formed when non-metal combined with oxygen? ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन उन ऑक्साइड्स की नेचर होगी एसिडिक ऑक्साइड्स या तो होंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स में देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फ्यूर डाइऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। और दूसरा होता है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, उसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो वो H2O देता है, वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। क्वेश्चन नंबर 12। रीजन्स देने हैं, हमें कुछ आंसर देने हैं, के कारण बताने हैं। प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हम जानते हैं कि ये कैसे हैं, इनसे हम वायर बना सकते हैं, इनको हम तार की फॉर्म में, वायर्स की फॉर्म में खींच सकते हैं। तो हम इससे कुछ भी वायर बना के डिजाइन बना सकते हैं, इसलिए इनको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। दूसरी बात, इन पे कोरोजन नहीं होता है, खराब नहीं होते हैं। तो मेनली प्लेटिनम गोल्ड दीज आर नॉट कोरोडेड एट ऑल। सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज हाईली रिएक्टिव है। अगर हम ये एयर के मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो दीज विल कैच फायर, इसलिए इनको हम ऑयल में डिप करके रखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। फिर भी इसको हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। हाईली रिएक्टिव है तो इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम जब वाटर के एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो अब सबसे पहले अपनी सरफेस पर एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड्स की, विच इज गिविंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। आगे रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं और हम उसके बाद एल्यूमिनियम को आसानी से बिना कोरोजन के यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए। कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो हम जानते हैं कि मेटल्स को हम केवल ऑक्साइड से आसानी से निकाल सकते हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सल्फाइड। कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, उनसे मेटल का डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम पहले उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और तब हम उनको मेटल में एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। You must have seen that tarnished copper vessel being
cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessel. तो हम जानते हैं कि लेमन खट्टा होता है, सोर होता है, उसमें एसिड होता है, इसे टेमरिन में भी एसिडिक सोल्यूशन होता है, और एसिड्स कॉपर के साथ रिएक्शन करके उसको, उसके जो ऊपर जो कॉपर ऑक्साइड्स की लेयर है, कॉपर कार्बोनेट्स की लेयर है, ये उनको डिसॉल्व कर लेते हैं और उसको फिर से वापस रेड ब्राउन शाइनिंग देते हैं. सो वी यूज द लेमन और टमेरिन जूस फॉर क्लीनिंग द कॉपर वेसल्स. वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आपका बोर्ड आपके एग्जाम में भी आता है और अच्छे मार्क्स देता है. ये डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ पर बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की गई हैं, बट दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अलग से याद करेंगे. सो डिफरेंसेस इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस. नंबर 1, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर. इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे. नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, तो ये रेड लिटमस को ब्लू, जो नॉन मेटल्स हैं इनको बनाएंगे ब्लू टू रेड. मेटल रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फ्रॉम सॉल्ट्स. ये को हम पढ़ चुके हैं कि मेटल्स एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स. With chlorine, metal form ionic chloride. For example, KCl, NaCl, these are chloride of metal. So these are ionic compounds formed by transfer of electron from metal to chlorine. So these are ionic chlorides. But non-metals, these combined with chlorine and form covalent chlorides. CCl4, HCl, these are example of non-metals. These are covalent nature. Few metals form electrovalent hydride with hydrogen. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, अधिकतर मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं. हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटेलिक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है. तो इस कंडीशन में जो मेटल्स स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन देंगे, केवल वही हाइड्रोजन के साथ में हाइड्राइड्स बनाएंगे. नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनाएंगे कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल टाइप का होता है और नॉन मेटल तो नॉन मेटल है ही. सो देयर कंपाउंड्स विल बी कोवेलेंट. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. आप इनमें से इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. A man went door to door, posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of gold and other ornaments which are old and dull. तो आपने अधिकतर कई बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ सोल्यूशन लेकर घूमते हैं, अपने आप को गोल्डस्मिथ बताते हैं, सोनार बताते हैं, और जो घर में रहने वाली लेडीज हैं उनके सामान, उनके बैंगल्स, उनकी चेन वगैरह को साफ करने के नाम से उनको मोटिवेट करते हैं. तो लेडी जो है उसने अपना मेटल दे दिया. उसने देखा कि अचानक देखा कि उसके जो मेटल का जो उसका बैंगल थी, वो उनमें से जो गोल्ड की बैंगल्स थी वो उनका वेट कम हो गया. तो लेडी वाज अपसेट, बट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट द मैन बीट ए हेस्टी रिपीट. उसने फिर से प्रोसेस किया. तो कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. एक्चुअली गोल्ड केवल एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होता है, और वो जो गोल्डस्मिथ था, जो कि अपने आप को गोल्डस्मिथ कह रहा था, फॉल्स था, जो कि अलग एक वाज नॉट गोल्डस्मिथ बट प्रपोजिंग हिम एज द गोल्डस्मिथ. तो उसने अपने साथ क्या लिया होता है, एक्वा रेजिया, जो कि बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलाकर. दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, 1:3 के रेशियो में मिलाए जाते हैं. सो एक्वा रेजिया, जब वो गोल्ड बैंगल्स को एक्वा रेजिया में डाला गया तो उसने थोड़े से गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, जिससे कि गोल्ड बैंगल्स का वेट कम हो गया. तो ऐसे इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखें एंड इस तरह के गोल्डस्मिथ जो घूमते हैं उनसे बचना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16.
गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक द हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। कॉपर के कंटेनर हम क्यों यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स के लिए, स्टील के यूज नहीं कर सकते। इसका कारण ये है नंबर 1 कि कॉपर के जो वेसल्स होंगे दीज आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। नंबर 2, कॉपर डज नॉट कोरोड, कॉपर पे कोरोजन नहीं होता है, लेकिन स्टील पे भी फिर भी स्टीम से कोरोजन हो सकता है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कॉपर वाटर से रिएक्शन नहीं करता हाई टेम्परेचर पर भी, बट आयरन कैन रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम, सो वी प्रेफर कॉपर देन स्टील फॉर मेकिंग द हॉट वाटर टैंक्स। हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए हम कॉपर को प्रेफर करते हैं स्टील के कंपैरिजन में। एक तो बेटर कंडक्टर है, कोरोजन नहीं होता है और किसी भी टेम्परेचर में वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। So that's all for today. Thank you. Keep watching. Thank you.